डिस्कस अबाउट फेज चेंज, लाटेंट हीट के बारे में डिस्कशन किए थे, बट यहाँ पे फेज चेंज क्या है? फर्स्ट इज योर सॉलिड फेज, फर्स्ट क्या है? सॉलिड फेज, फेज चेंज, राइट डाउन, फेज चेंज, फेज चेंज क्या है? सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, फिर लिक्विड से वेपर हो रहा है, फिर वेपर से क्या होगा? फिर वेपर से क्या होगा? वेपर से और क्या होगा? और कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर बैकवर्ड भी जा सकता है, वेपर से लिक्विड होगा, लिक्विड से सॉलिड होगा, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर होगा, एंड वेपर से डायरेक्ट व्हाट? सॉलिड होगा। सॉलिड से लिक्विड जब होगा उसको बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग, but the equilibrium point is known as fusion. Equilibrium point is known as what? Fusion there. Understand this? This is what melting. Understand this? और this is what freezing. Liquid से solid हो रहा है तो freezing हो रहा है. This is freezing and melting and freezing दोनों को fusion भी बोला जाता है. दोनों को क्या है? फ्यूजन बोला जाता है. लिक्विड टू वेपर इज व्हाट? वेपोराइजेशन. This is what? Vaporization. Vapor to liquid is what? Condensation. This is condensation. और ये melting है, ये प्रोसेस को melting हो रहा है, melting, melting, vaporization और melting. सॉलिड से वेपर डायरेक्ट हो रहा है तो क्या है? अरे सॉलिड से डायरेक्ट वेपर विदाउट पासिंग थ्रू Sublimation. यस, सब्लिमेशन, वेरी गुड. दैट इज व्हाट? सब्लिमेशन. Sublimation, vapor to solid, that is solidification. Solidification. ये है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. इसका डेफिनेशन 1 1 मार्क का गिरता है, वेरी इजी डेफिनेशन से. लिखो ऐसे, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लो, एंड इसका एक एक करके डेफिनेशन लिखेंगे. लिखो, राइट डाउन. Evaporation, right down. Third is your evaporation. The escape of the molecules from the surface of a liquid is called evaporation. Is called evaporation. Next, fourth point, boiling point. Fourth is boiling point. Boiling point number 4. Boiling point. What is boiling point? The temperature at which bubbles start forming in the liquid is called boiling point. The temperature at which bubbles start forming in the liquid is called boiling point of the liquid. Bubbles start from forming in the liquid is called the boiling point of the liquid. ये था लेमन डेफिनेशन. बट अच्छा डेफिनेशन क्या होगा? अच्छा मतलब क्या है? इसमें फिजिकल डेफिनेशन क्या होगा? और राइट डाउन, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस को एग्जिस्ट. लिखो. और another definition, our boiling point is the temperature at which boiling point is the temperature at which the liquid and vapor state of a substance coexist in thermal equilibrium. Temperature at which the liquid and vapor states of a substance coexist in thermal equilibrium. सर Coexist और एक बार in, रिपीट. what? सर और एक बार थोड़ा repeat. Okay, another definition, right on, or what? Boiling point is what? क्या लिखा है? Boiling point is the temperature at which the liquid and vapor state, the liquid and vapor state of a substance, the liquid and vapor state of a substance coexist in thermal equilibrium. Coexist in thermal equilibrium. Coexist in thermal equilibrium. Next, sublimation.
लिखो sublimation, the process in which the molecules escape directly from a solid into a gas, the process in which the molecules escape directly, the molecules escape directly from a solid into a gaseous phase, into a gaseous phase without going through the liquid phase, without going through the liquid phase is called sublimation. Sublimation. हुआ? Next, लिखो PT graph for phase change. Write down pressure temperature graph for phase change. Write down PT graph. लिखो P T graph. P means pressure, T means temperature. PT graph for phase change. For phase change. PT graph for phase change. What is that PT graph for phase change? Look here, the PT graph will be like this. This is what we are taking P pressure. This graph is temperature. First write down. First case के लिए लिखेंगे first. First write down. First is your what? First is vaporization curve. Write down. First is vaporization curve. Vaporization curve क्या है? Pressure, temperature. Vaporization curve. Vaporization curve means what? The change of what? Liquid into vapor. The graph you are going to get like this. Vaporization graph ऐसे curve आएगा. ये curve आएगा. This is the liquid state. This is the liquid state, and this is the what? Gaseous state. This is the gaseous state, and curve is known as what? This is the vaporization curve. This is what? Vaporization curve. This curve is a vaporization curve. Vaporization curve. Clear? And the point on these points are known as equilibrium point. These are the point of equilibrium. मतलब temperature बढ़ा लो तो what? The liquid will convert into gas. Temperature को घटा लो तो gas will convert into liquid. फिर pressure को बढ़ा लो, more gas will convert into liquid. Pressure को घटा लो तो more liquid will convert into vapor or gas. Clear? So this is what vaporization curve. Draw करो graph. This is what? Sublimation curve. Sublimation curve means pressure and temperature same graph. This is what? Solid, and this is what? Sublimation curve. Sublimation curve. Yes, bolo. Sublimation curve. And this is what here? Solid. This is what here? Solid. And this is what? Vapor. This is what? Vapor. And this is the point of equilibrium. Point of equilibrium. इधर जाओ तो more solid will convert into vapor. Temperature घटाओ तो more vapor will convert into solid. Pressure को बढ़ाओ more vapor will convert into solid. Pressure को घटा दो more solid will convert into vapor. Clear? This is what? Sublimation curve. Clear? Next fusion curve देखेंगे. लिखो. Next write down fusion curve. What is that? Number 3, fusion curve. Two types of solids are there. One solid what? Expands on heating, while another solid contracts on heating. Likho. Two types of solids are there. Two types of solids are there. Number 1, some solid expands on heating. Some solid expands on heating. Expands on heating. Example है ice. Sorry, wax. Expand on heating.
The solid expands on heating. Expands on heating. Example is your what? Example है ice. Sorry, ice नहीं है, wax है. Wax क्या हो रहा है? Wax is what? What? On giving heat it expands. देखो wax में अगर heat दोगे तो expand करेगा. क्लियर? तो इसका पीटी ग्राफ कैसे होगा? वॉक्स का सम सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, दैट इज वॉक्स. तो इसका ग्राफ सेम जैसे हम लोग किए थे बाकी तीन में. एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, व्हाट इज दैट? Expands on heating. This is pressure, this is temperature, and the graph will be, it will pass through the origin and it is a curve, positive slope. तो ये क्या है? ये सॉलिड है. दिस इज व्हाट? सॉलिड. ये क्या है? लिक्विड है. ये लिक्विड है. दिस इज व्हाट? सॉलिड. दिस इज व्हाट? लिक्विड. लिक्विड को ऐसे कर लो, लिक्विड. दिस इज व्हाट? लिक्विड. ये सॉलिड है, ये लिक्विड है. सॉलिड है, ये लिक्विड है. एंड दिस इज व्हाट? फ्यूजन कर्व. दिस इज व्हाट? फ्यूजन कर्व. ये पॉइंट सब ऑन द कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट है. इधर जाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, मोर सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. टेम्परेचर घटाओ, मोर लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? सॉलिड. प्रेशर को बढ़ाओ, मोर व्हाट? लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड. प्रेशर को घटाओ, मोर सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. दिस इज व्हाट? The solid expands on heating. The solid expands on heating. Expands on heating. Some solids are there, contracts on heating. Which solids are there? Let's see. ग्राफ ड्रॉ कर दिए. अरे ग्राफ ड्रॉ कर दिए. Yes, sir. Okay, number 2. Some solids are there which are contracts on heating. Number 2. Solid contracts on heating. Contracts on heating. Contracts on heating. Which solids are contracting on heating? Ice. आइस में देखो, आइस जो ट्रे घर में यूज कर रहे हो तुम, तो ट्रे में जो है ऐसा ट्रे का होल होता है, पूरा पानी यहीं तक दिया. बट जब आइस बनेगा थोड़ा ऐसे उठ के बनेगा आइस. मतलब द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ऑलवेज मोर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर. इसलिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. द डेंसिटी ऑफ आइस विल बी लेस देन वाटर. वही वाटर से बनाया गया. बट जब सॉलिड, वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस, its volume is more, therefore density will be less, therefore ice floats over water. Understand this? तो therefore इसमें क्या होगा, जब ये आइस फिर मेल्ट होगा फिर इसका वॉल्यूम इतना ही हो जाएगा. मतलब व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन हीटिंग. एग्जाम्पल इज आइस. तो इसके लिए ग्राफ क्या होगा? व्हाट? नेगेटिव स्लोप होगा. इसके लिए ग्राफ क्या आएगा? नेगेटिव स्लोप आएगा. पीटी ग्राफ. The graph will be negative. Pressure and temperature graph will be negative. You'll get the negative slope. This is what P and this is what T. Negative slope will be there. ऐसे आएगा. Graph will be like this. ये है ice, solid है. This is what ice and this is what liquid. मतलब water है. ये water है. This is what? Water. This is what? Water. ये है fusion curve. ये क्या है? फ्यूजन कर्व. ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट यहीं से राइट जाओ, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ, मोर आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर. टेम्परेचर घटाओ, मोर वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस. प्रेशर को बढ़ाओ, मोर आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर. प्रेशर को घटाओ, मोर वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस. मोर वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस. इज इट क्लियर? Understand this? अरे समझ में है? So these are the what? Phase change and pressure temperature graph. These are what? Phase change of the what? Substances, and this is the pressure temperature graph of the substances. Is that clear? Now इसमें लिख दिए सभी? अरे ड्रॉ कर दिए? Yes, sir. Next, triple point of water क्या है? इसमें एक ट्रिपल पॉइंट मिलेगा. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल पॉइंट? द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट. अरे ट्रिपल पॉइंट मीन्स व्हाट? तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर होगा ट्रिपल पॉइंट.
ट्रिपल पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल पॉइंट? ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट, मतलब रेफ्रिजरेटर से आइस निकाल दिए, कुछ आइस डायरेक्टली वेपर बन गए, कुछ आइस लिक्विड हो गए, आइस स्टेट तो मिल रहा है वहाँ पे, मतलब आइस भी है, लिक्विड भी है, वेपर भी है, तो देयर यू आर गेटिंग ट्रिपल पॉइंट. तो एट 0 डिग्री और 0 केल्विन यू आर गेटिंग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. अंडरस्टैंड दिस, लिखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल point of water is defined as the point where all the three states of matter coexist, where all the three states of matter coexist in thermal equilibrium. All the three states of matter coexist in thermal equilibrium. तो क्या होगा? पहले होगा what? Sublimation Sir, curve. लिखो this is the temperature at which, ऐसे भी लिख सकते हो, this is the temperature at which all the three states of matter coexist in thermal equilibrium. This is the temperature at which all the three states of matter coexist in thermal equilibrium. All the three states of matter coexist in thermal equilibrium. Understand this? समझ में है? All the three states of matter coexist in thermal equilibrium. देखो ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. This is the triple point of water. O is the triple point. How? We can define triple point like this. This is what ice means, solid. This is what the solid, and this is the liquid. This is what the liquid here. This is what the liquid here, or water. This is what water, and this is what vapor. This is the vapor. So at O, all the three states of matter coexist. Therefore, it is known as triple point of water. Vapor. All the three states of matter coexist. Therefore, O is known as triple point. देखो, लिखो एक एक करके लिखो. AO is known as sublimation curve. Sublimation curve, और उसका अलग सा नाम भी है होआर फ्रोस्ट लाइन. HOAR, होआर फ्रोस्ट, FROST, होआर फ्रोस्ट लाइन. ये वही सब्लिमेशन कर्व और होआर फ्रोस्ट लाइन. इसको भी नाम दे दो. दिस इज व्हाट B, दिस इज द B, दिस इज द C. नाउ BO इज नोन एज, कौन सा कर्व होगा BO? अरे BO कौन सा कर्व होगा? फ्यूजन कर्व. BO is the fusion curve, and CO is the vaporization curve. CO is the vaporization, what is that, curve. So AO is the sublimation curve or Hoare-Frost line, BO is the fusion curve, and CO is the vaporization curve, and O is the triple point of water. O is the triple point of water. O is the triple point. O is a triple point of water. Triple point that exists exactly at what? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर टेम्परेचर यहीं पे मेजरमेंट करोगे तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा. वह प्रेशर इज ऑलमोस्ट 0.006 आएगा. ये प्रेशर जो है ऑलमोस्ट 0.006 आएगा. ये भी ऑलमोस्ट 0 है, 0.006. हुआ? तो दिस इज व्हाट अबाउट ट्रिपल पॉइंट. किसका डाउट है ट्रिपल पॉइंट तक? कंप्लीटेड. नाउ yes, sir. नेक्स्ट इज योर हीट ट्रांसफर. ये लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर क्या है? अरे कॉपी ट्रांसफर क्या है? चीटिंग जो कॉपी करते हो, कागज में लिख दिया, रैप कर दिया आंसर को. तो कॉपी कितने प्रकार के ट्रांसफर हो सकता है बोलो? हाफिली चल रहा है आजकल तो, ऑनलाइन हो गया, बट ऑफलाइन में एग्जाम दे रहे हैं, वह रो में लिख रहे हैं. अरे अगर 15 रो है एक बड़ा सा हॉल में, 15 रो है बड़ा सा हॉल में, ये जो बंदा लिख रहा है आंसर, ये आंसर इस सभी को पास होते होते यहीं पे चलाता है. कैसे है?
पहले क्या करता है ये बंदा, यहीं पे बैठे बैठे उसका आंसर ट्रांसफर कर लेता है। कैसे? पहले इसका आंसर इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा, या फिर इसको भी जा सकता है, इसको जाएगा, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, उसके बाद इसके पास जाएगा। मतलब बैठे बैठे कॉपी ट्रांसफर हो रहा है, ये कंडक्शन है। टीचर लोगों की पता नहीं चलता है, कंडक्शन होता है आंसर सब। अरे समझ में है? तो ऑनलाइन में जो ट्रांसफर हो रहा है चीटिंग, वो क्या है? कंडक्शन है। समझ में है कि नहीं? अरे तुम्हारा एक टाउनशिप का एक कोने कोने में बच्चे बैठे हैं घर में, बट आंसर सेम है सभी का जब चेक करता हूँ कभी, तो ये कंडक्शन है। कंडक्शन का मतलब क्या है? कंडक्शन इज व्हाट? हीट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विदाउट डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल्स। मतलब एक आयरन रोड को यहीं पे हीट करो, यू कैन फील द हीट हियर। अरे समझ में? मतलब हीट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। अरे यहीं पे पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, बट द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, बट हीट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इजिली। समझ में? एक पार्ट हीट करो तो दूसरे पार्ट का हीट चला जाएगा, एक पार्ट आंसर लिखो तो दूसरा पार्ट आंसर मिल जाएगा। दैट इज व्हाट? कंडक्शन। समझ में है? कंडक्शन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कैसे जा रहा है आंसर? अरे बंदा खुद बोला पानी पीना है मुझे, या फिर पेंसिल लेना है, स्केल लेना है, उस इससे ऐसे बोल के टीचर के पास, टीचर को बोला मुझे थोड़ा पानी पीना है या फिर स्केल लेना है, ये बंदे से, इसलिए खुद चल के आया ऐसे। अरे खुद चल के इसके पास आया, आंसर शीट दे के फिर चला गया। समझ में है कि नहीं? ये क्या है? ये कन्वेक्शन है। समझ में है कि नहीं? कन्वेक्शन मतलब क्या है? हीट एक मीडियम के ऊपर ट्रेवल करके वन पार्ट टू अनदर जाएगा, और एक मीडियम के ऊपर ही जाएगा, ट्रेवल करेगा। मतलब इफ यू जस्ट व्हाट स्टैंडिंग नियर ए फायर, इफ यू जस्ट स्टैंडिंग नियर ए फायर यू विल फील हीट। यहीं पे अगर तुम फायर जल रहा है, आग जल रहा है, इफ यू जस्ट स्टैंडिंग नियर ए फायर व्हाट यू विल फील द हीट। व्हाई? बिकॉज द हीट इज ट्रेवलिंग व्हाट इन द मीडियम, दैट इज ट्रेवलिंग थ्रू एयर। एयर है, एयर के ऊपर बैठ के ये जो वार्म है आ रहा है, इसलिए दिस इज द कन्वेक्शन। मतलब ये चीटिंग क्या, ये खुद लेके आ रहा है ये बंदा एंड इसको दे रहा है, वो कन्वेक्शन हो रहा है। अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होगा? अरे आंसर कैसे पास करोगे? यहीं से यहीं तक रेडिएशन। थोड़ा अगर मोबाइल रिंग हुआ, टीचर बाहर निकल गए क्लास से, तो फेंकोगे जो लिखा था चीटिंग, यहीं से यहीं तक फेंकोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में ही कैच करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं? बाकी सब बंद है बट उनको पता नहीं चलेगा क्या जा रहा है। अंडरस्टैंड दिस और नॉट? बट प्रोजेक्टाइल मोशन से जाएगा आंसर, ये आंसर फेंका, ये उसको कैच किया। तो दिस इज व्हाट द कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स व्हाट? हीट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विदाउट hitting the inter